Assalamu alaikum everyone and welcome back to Learn Correct English. So today's topic is on tenses and it is the most demanded topic from you people. So let us dive into this important topic of English language. So it is the most significant topic of the English language. It is the building block of the English language on which the entire structure is based. So without wasting any further time, let us move towards. So basically, what is a tense? A tense in grammar is a category that expresses time. And I would be bilingual here also for those students जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा मुश्किल होता है. Obviously, ये हमारी first language नहीं है. So it is all right, dear students, to speak in English or in Urdu. So ये एक ग्रामर की एक ऐसी कैटेगरी है, टेंस इज अ कैटेगरी जो हमें टाइम के बारे में बताती है कि किस टाइम पे एक सर्टेन एक्शन हुआ है, वेदर इट इज इन प्रेजेंट, whether that action has occurred in past or it had occurred in future or it will occur in future. So basically it is any form of a verb which show the time at which the action happened. बेसिकली टेंस हमें किस चीज से पता चलता है? जो वर्ब की फॉर्म होती है ना, लाइक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो ये जो तीन फॉर्म्स होती हैं वर्ब्स की, ये हमें हेल्प करती हैं कि हम किसी भी सेंटेंस का जो है एक टेंस मालूम कर सकें. सो दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब help us to determine the tense of the English sentence. So here are few examples, and these are basically taken from Cambridge Dictionary. For example, if I say I sing, it is in present tense. Why? Because this sing is the first form of the verb. ये जो sing है, ये first form है verb की. इसी वजह से ये जो first form है, इसने हमें बताया है कि ये present tense है. And if I say I sang, this sang is the past tense or it is the past form of the verb which shows कि कोई एक्शन या मैंने कोई गाना गाया है और वो पास्ट में मैंने गाया है. फॉर एग्जाम्पल कल मैंने गाया है, तो फिर मैं ये वाला टेंस यूज करूंगी, आई सैंग. सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस. थ्री टाइप्स हैं टेंसेस की. One is the present, one is past, one is future. Like for example, we say कि आज ये हो रहा है, कल ये हुआ था और कल जो आने वाला है उसमें ये काम होना है. सो जो आज है वो present है, जो कल गुजर गया वो past है, और जो future आना है that is right and that is जो कल आना है अभी. So there are basically 12 tenses of the English language. And today we would be focusing only on the present tenses, ताकि आप लोगों को जो है इसको याद करने में आसानी हो. तो फिर हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ. सो व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस वो है जो हमें आज की एक्शंस, आज की हैपनिंग्स के बारे में बताएगा. ठीक है. इट इज अ फॉर्म ऑफ दैट टेंस और ये हमें ऐसे टाइम के बारे में बताएगा. ये ग्रामर की एक ऐसी कैटेगरी है जो हमें आज के टाइम के बारे में बताएगा. मतलब आज हमने जो जो एक्शंस किए हैं या हम कर रहे हैं या हमने कर लिए हैं, तो उन सारे को जो आज से डील करते हैं वो प्रेजेंट टेंस के अंडर आएंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद दीज फोर टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस. So what happens in a present simple tense? It is the most basic tense in the English language. और इसमें हम verb की first form को use करते हैं. Like for example, I eat, I learn English. So what is basically happening in these two examples? Whenever we tell anything that we do in the habit form,
लाइक फॉर एग्जांपल जो हम रोजाना की बुनियाद पे करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक हमारी रोज के बिहेवियर्स हैं। लाइक हम लोग सोते हैं, रोज रोज सुबह उठते हैं, अपने टीथ ब्रश करते हैं, और फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। एंड likewise the things we perform daily in our life that would be expressed through simple present tense, वो सारी चीजें हम लोग simple present tense के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे, और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हेयर हमने ईट की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ईट इज अ वर्ब, तो इस वर्ब की दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सो in this example, I learn English. Here, learn is the first form of the verb. ये verb की first form है जो हमें बता रही है कि it is the simple present tense. And it is basically telling us about the activity that we are dealing daily. All right, that we are dealing with daily. Like हम लोग अगर रोज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको कैसे एक्सप्रेस करना है सेंटेंस में, आई लर्न इंग्लिश। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अब आपको पहले ही पता है, जैसे ये नाम हमें बता रहा है कि प्रेजेंट होगा और साथ कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि जो भी एक्शन या जो भी काम हम कर रहे हैं वो रूटीन में अभी इस वक्त हो रहा होगा। दैट एक्शन इज बेसिकली टेकिंग प्लेस राइट नाउ। दैट इज व्हाई वी आर डीलिंग विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बोल रही हूँ, तो आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। तो अभी जो मैं एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ उसको अगर मैंने आप लोगों को बताना है, लाइक आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो फिर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करूंगी। इसका जो है रूल क्या होता है, इसमें आपने इज, एम या आर लगाना होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विद आईएनजी। आईएनजी क्यों आता है? क्योंकि जी ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, मतलब जो हैपनिंग इस वक्त हो रही है, करंटली कोई काम इस वक्त हो रहा है, उसको शो करने के लिए हम आईएनजी लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इस वक्त खाना खा रहे हैं, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड एम, एंड वी हैव यूज्ड द फर्स्ट फॉर्म ईट, एंड यहाँ पर हमने आईएनजी लगाया है। ठीक है। इसी तरह अगर इस वक्त मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो उसमें हम लोग एम लगाएंगे क्योंकि आई आया है। इधर अगर ही आता तो इज आता, यू आता तो आर आता। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये आगे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको हम लोग चूज करते हैं। फिर हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न लगा दी, एंड देन वी हैव पुट आईएनजी बिकॉज वी आर राइट नाउ लर्निंग इंग्लिश। सो दिस इज हाउ दिस टेंस tells us about the action that is taking place right now. So you see कि ये वाली एग्जांपल्स हमें बता रही हैं जो उनसे एक्शंस अभी इस वक्त हो रहे हैं। तो जो इस वक्त एक्शंस हो रहे हैं करंटली आज के दिन में, उनको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस होता है जो हमें किसी एक्शन के कंप्लीट होने या ना होने का बताता है। ठीक है, और इसमें हम लोग यूज करते हैं हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब जिस तरह से मैंने इस वक्त खाना खा लिया है, तो आई वुड से आई हैव और ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग यूज करेंगे क्योंकि ये रूल है परफेक्ट बनाने के लिए। तो आज के दिन में मैंने जो खाना खाया है, यानी प्रेजेंट के उसमें जो मैंने एक काम कर लिया है, मतलब कि वो टास्क कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वुड से आई हैव ईटन। ठीक है, यहाँ पर हैव बता रहा है प्रेजेंट टेंस है, ईटन बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये हमें ओवरऑल बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कैसे है कि ये काम हमने कर लिया है, इस वक्त हमने खाना खा लिया है। देन वी हैव आई हैव लर्नड इंग्लिश। सो ये सेंटेंस हमें बता रहा है कि मैंने इंग्लिश सीख ली है, और ये
जो एक्शन इस वक्त हुआ है या ये जो इसमें एक काम हुआ है वो कंप्लीट हो गया है। तो दैट इज वाई वी हैव पुट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्नड। आई हैव लर्नड इंग्लिश। समझे, अगर मैंने इंग्लिश ना याद की हो, ठीक है, तो वो फिर इनकम्प्लीट एक्शन किस तरह हम शो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये आज लेसन दे रही हूँ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू लर्न दिस प्रेजेंट टेंस, देन यू वुड से आई हैव नॉट लर्नड टुडेज क्लास और टुडेज लेसन। मैंने आज का लेसन नहीं तैयार किया है। ठीक है, तो आज के दिन में जो काम आप नहीं कर पाए वो इनकम्प्लीट एक्शन भी आप शो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से, और जो काम आप कंप्लीट कर पाए वो भी आप शो करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट से। बस ये है कि इनकम्प्लीट अगर आपने कोई काम छोड़ दिया है और वो नहीं हो पाया, तो उसके लिए आप हैज और हैव के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, एंड नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस है, ये हमें ऐसे एक्शन के बारे में बताता है, ऐसे काम के बारे में बताता है जो प्रेजेंट में हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, दैट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो टेंस यहाँ पर ये जो वर्ड आया है कंटिन्यूअस, ये इन इट सेल्फ बता रहा है कि एक एक्शन जो है वो इस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इट इज इन प्रोग्रेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये बात करते हैं आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, और मैं अभी तक खा रही हूँ आज के दिन में ही। ठीक है, तो ये काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया पूरी तरह। ठीक है, तो ये हमें एक्शन का क्या बता रहा है कि अभी तक मैं खाना खाती जा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें हम पुट करेंगे हैव, उसके साथ हम बीन पुट करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। ठीक है, और फिर हम लोग आईएनजी लगा देंगे टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ एनी एक्शन, और साथ हम टाइम के बारे में भी बताते हैं कि कब से कोई काम हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इट इज यानी एक ऐसा एक्शन जो थोड़ी देर से हो रहा है, और अभी लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो टाइम हो रहा है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये 10:41 हो रहे हैं, और मैं अभी तक अगर खा रही हूँ तो मुझे बताना है कि मैं कब से खा रही हूँ, तो दैट इज सिंस मॉर्निंग। ठीक है, जब भी कोई हम लोग एग्जैक्ट टाइम मेंशन करेंगे, मतलब आज की सुबह से एक एग्जैक्ट टाइम है, तो फिर हम लोग सिंस लगाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी वे में मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर मैं इसको थ्रू आउट इंग्लिश में आप लोगों को बताती, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इजी करके एंड ऑन देयर डिमांड मैं इन सेंटेंसेस को उर्दू में भी आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि कैसे आप कोई एक एक्शन जो आप सुबह से परफॉर्म कर रहे हैं आज के ही दिन प्रेजेंट में, और वो अभी तक आप परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो अभी तक एंड नहीं हुआ, दैट इज नॉट completed येट, तो आप लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल द टाइम कि आप कब से वो वाला एक्शन करते आ रहे हैं आज के दिन। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours। अब यहाँ पर आप देखें, हैव लगाया है, बीन लगाया है, ये रूल है, लर्न फर्स्ट फॉर्म लगाई है वर्ब की, और आईएनजी साथ लगा दी है, और मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ 2 घंटे से। अब मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया आपको कि अभी रात के 2 घंटे से आज के दिन, या आज की दोपहर के 2 घंटे से मैं पढ़ रही हूँ, या सुबह के आज जो सुबह हुई थी उसके 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। सो यहाँ पर 2 hours जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, 2 घंटे स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं इसको ये कर दूं कि सिंस अभी जिस तरह 10:42 हो रहे हैं, तो मैं ये कर दूं कि सिंस 8:42 PM, सो दैट वुड शो कि मैं 2 घंटे से यानी लास्ट 2 hours से मैं पढ़ रही हूँ। तो उसके लिए जब एक हम स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल 8 o'clock, तो फिर हम लोग सिंस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा रूल है, एंड आई होप
कि you people have understood this rule, and I hope that I have made things easier for those people जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जब हम थ्रू आउट इंग्लिश में लेक्चर लेकर चलते हैं. सो यू नीड टू लर्न दिस चार्ट बाय हार्ट, या आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और बिल्कुल कंसेप्चुअल है और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो काम आप अभी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये लेसन देख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, और आप लोग खुद इस चीज को ओवरकम कर जाएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर. और अगर आप लोगों को किसी भी चीज की कोई मुश्किल आती है तो डू टेल मी, आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. सो लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. Here we have this picture, and if I say I teach, so what tense is this? Can you guess? Here we see that this is the first form of the verb teach, and it is a habit, or it is a daily routine in my life to teach. So we would say that as it is the first form of the verb, it is simple present tense. All right, ये क्या हो गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस? क्यों? क्योंकि मैं रूटीन में एक चीज जो काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ रोज, उस चीज को बताने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं रोज सोती हूँ तो मैं यूज करूंगी आई स्लीप. ठीक हो गया? ये छोटी सी एक्सरसाइज थी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो. तो जैसे इस पिक्चर में यू आर एक्चुअली लुकिंग एट अ बॉय, और वो बर्गर खा रहा है इस वक्त, और चिकन पीस. सो इस वक्त वो खा रहा है, वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है. ठीक है, इस वक्त वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कोई चीज खा रहा है. तो व्हाट वी विल से, ही इज ईटिंग अ लेग पीस. ही इज, ये बिल्कुल वही वाले रूल हैं जो मैंने पीछे आपको टेबल में बताए हैं. इज हमने यूज किया, ईट यूज किया फर्स्ट फॉर्म, और हम लोग आईएनजी लगा देंगे. क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस वक्त वो काम ये कर रहा है, वो बॉय ये काम इस वक्त कर रहा है. ही इज ईटिंग, आगे जो भी है आप वो लगा दें. ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Why? Because ing is there and it is the first form of the verb we have used is. So let us now move forward. So what does this picture show? Any guesses? This picture shows that this person, इस बंदे ने ये जो प्लेट है, ये खाना शाना इसने खा लिया है. So this shows that the person has eaten his food. यहाँ पर ये काम हो चुका है ना. मैंने आपको पहले बताया ये काम अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसमें क्या चीज यूज करेंगे? हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. ठीक है, अब इधर ये काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है. So what we will use? We will use has he has eaten. ठीक है, हैज लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. जो ईट की थर्ड फॉर्म है वो क्या है? ईटन. तो ही हैज ईटन. आई होप कि इन सारी एक्सरसाइजेस के थ्रू आपको चीजें अब क्लियर हो रही हैं. मैं इसीलिए इस वक्त सिर्फ प्रेजेंट टेंस को डील कर रही हूँ ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो, और आप लोग सिर्फ प्रेजेंट टेंस को आज के दिन याद कर सकें. So now we have a basic exercise and you need to identify the tenses. आपने इन sentences को पढ़ना है और इसके अंदर जो tense use हुआ है वो आपने बताना है. ठीक है? Do comment me in the comment section and then I'll check your basically this exercise, your answers to these questions, and I'll be always there to help you. And keep learning, keep sharing, and keep lacking us. Learn correct English. Thank you so much.